Namaste everyone and welcome to this fabulous series where we are covering all the 114 sets from CAT 17 till CAT 2024. I'm pretty sure by now you've already understood the modus operandi that I have. We'll first decide whether the set is doable or not, then we'll actually solve the set and then take up some important learnings as we go along. So without wasting any more time, let's look at this set from CAT 22 slot 1. So CAT 22 slot 1 के अगर इस set को देखें तो we'll follow the fate framework to decide whether to do this set or not. So A, B, C, D, E, F are the interviewers in a process. So straight away when you look at the set, you realize that there are 6 people who are interviewers and they are going to interview each of the candidates individually. So यहाँ पे clues जो given है उसके हिसाब से I can say each interviewer is going to interview the candidates individually and award a token if she recommends funding. A token has a face value of 2, 3, 5, 7, 11, 13. Now these are very familiar, easy numbers. I'll say familiarity में तो this set would definitely rank high. एक बार quickly देख लें clues में ambiguity है क्या? Once all the 6 interviewers are over for a candidate, the candidate receives a funding that is 1000 times. F awarded tokens to everyone except Q. So straightforward clue है. I don't think there is any ambiguity. Ambiguity is also in our favor. You can definitely pick this set. Ambiguity की कोई दिक्कत नहीं है. Time consumption 3 clues हैं और 2, 3, 5, 7, 11, 13 के मल्टीपल्स को फिट इन करना है. इफ यू आर गुड विथ नंबर्स, इफ यू प्रैक्टिस क्वांट बेस्ड रीजनिंग रियली वेल, आई थिंक दिस शुड बी अ डूएबल सेट. तो टाइम कंजम्पशन भी हमारे फेवर में है. और लास्ट पार्ट आता है एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. हाउ मेनी टोकन्स डिड क्यू रिसीव? टीटा बेस्ड क्वेश्चन है तो टीटा क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेगा. सेकेंड क्वेश्चन विल हेल्प अस. अगर डायरेक्टली नहीं भी निकला तो ये हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली रिसीव्ड अ टोकन, तो हम 4 केसेस बना सकते हैं वर्स्ट केस में. तो सेकंड इज फेवरेबल. थर्ड और फोर्थ टीटा बेस्ड क्वेश्चन, so we'll definitely say extra info questions is also in our favor. I'll definitely pick this set because I'm super confident of my abilities to solve sets on quant based reasoning और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दिक्कत देगा. So without wasting any more time, let's jump quickly to understanding कि हम structure किस तरह का बना सकते हैं. So I think the whole way in which you will structure this data will decide how much time you are going to take. So a lot of people will typically create a structure like this कि sir जैसे ही हमें दिख रहा है तो हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे A, B, C, D एंड सो ऑन. सो यू विल वांट टू क्रिएट अ मैट्रिक्स लाइक कि A, B, C, D ऐसे कुछ इंटरव्यूअर्स हैं और फिर टिपिकली दे आर गिविंग टोकन्स टू द पीपल और पीपल के नाम PQRST है. सो यू कैन क्रिएट अ PQRST. इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन यू विल एलोकेट कि A ने किसे टोकन दिया. दिस विल बी सुपर टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट रिकमेंड दिस. प्ले विथ नंबर्स. व्हाट डू यू मीन प्ले विथ नंबर्स? You create an order for this and the corresponding multiples that you will have. So token or face value के हिसाब से if you create a structure which I am going to show you in the next slide, believe me your case solution will be a cakewalk because you have inherent properties in numbers. एक golden rule बता रहा हूँ, हमेशा के लिए ध्यान रखना. Whenever you have numbers available जिनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज होना है कि 3,90,000 है तो वी नो कि 3 एक फैक्टर आना है इसमें. वी डेफिनेटली नो कि इसमें 13 एक फैक्टर आना है, 2 आना है, 5 आना है, इस तरह के फैक्टर्स आने हैं. तो जब नंबर्स की प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, वी कैन यूज दोस प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैरामीटर्स. ऑलवेज पिक नंबर्स रादर देन एलोकेटिंग दिस बाय नेम. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है कि 390,000 तो फैक्टर बाद में मल्टीप्लाई होना है. विल लुक एट द क्लू दैट रिसीव्स द फंडिंग दैट इज 1000 टाइम्स. तो 1000 टाइम्स मतलब हमें तो बस फैक्टर सोचना है कि 390 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स इनमें से कौन कौन से आएंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई टिक एंड क्रॉस बेस्ड ऑन दैट. सो कैन आई से जैसे ही 0 दिख रहा है कहीं भी तो उसमें 2 फैक्टर आना है और 5 फैक्टर आना है. तो यहां भी 2 फैक्टर आना है, 5 फैक्टर आना है. अब 39 क्या होता है? 3 13 तो 3 एक फैक्टर आना है, 13 एक फैक्टर आना है, 7 और 11 फैक्टर नहीं है. सो आई अप्लाई क्रॉस. 210 में 10 तो अपने कर दिया, 2 5 21 बचा. 21 क्या होता है? 3 7 सो 3 एक फैक्टर आएगा, 7 एक फैक्टर आएगा, 11 फैक्टर नहीं है, 13 फैक्टर नहीं है. 165 में क्लियरली 5 एक फैक्टर तो दिख रहा है. अब 5 से डिवाइड करें, 5 3 15 बचेगा 1, 5 3 15, 33 बचा. 33 3 11 तो बचे हुए कोई फैक्टर और नहीं आएंगे. 77 इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 7 11 तो 7 11 आ गए, बाकी सब जगह क्रॉस आ जाएगा. एंड 66 इज 2 3 6 11 तो 2 3 सो डेफिनेटली वी कैन से कि 2 नहीं आएगा. नहीं 2 आएगा तो टिक लगेगा.
2 3 जा 6 11 जा और बाकी जगह क्या आ जाएगा क्रॉस. So this is super easy to fill. What they are saying is token has a face value of this, and once all the 6 interviews are over for a candidate, the candidate receives a funding that is 1000 times the product of the face values of all these tokens. अच्छा, I am assuming that all of you would have tried this set earlier, तो आपका पढ़ा हुआ है. I'm just helping you with the clues and their structure so that you get the answers in a comprehensive manner. तो हमने structure कर लिया है कि corresponding कौन से multiples किसके लिए आएंगे और फंड्स किसके थे. नाउ वी जस्ट नीड टू allocate. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बिकॉज द इंटरव्यूअर्स आर 6 who are going to award these tokens, मैं इंटरव्यूअर्स यहाँ पे 6 प्लेसेस में कवर करूंगा. फॉर एग्जांपल ABCDEF. सो ABCDEF यहाँ आएंगे और मेरे जो इंटरव्यूईज हैं 5, वो 5 इंटरव्यूज PQRST यहाँ आएंगे. So I'll mix and match depending on the clues. So first clue पे चलते हैं. F awarded tokens to everyone except Q. मतलब हमें ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसके ऊपर हम F लोकेट करेंगे कि वहां 4 जगह टिक मिल जाए. बिकॉज हमारे पास 5 इंटरव्यूज हैं, 5 में से 4 को दिया है Q F ने. F awarded tokens to everyone except Q. तो 4 टिक कहां दिख रहे हैं? यहाँ 1 2 3 टिक दिख रहे हैं. 1 2 3 4 ये हो सकता है. 1 2 3 1 2 1 2 3 1. So we have only one scenario where there are 4 ticks, so I can guarantee that F has to be this person with token number 3 and she has awarded tokens to all except Q. मतलब guarantee है कि जिसे token award नहीं किया वो Q होना पड़ेगा. Now look at the beauty of this structure. If you're able to create this structure, all the clues will automatically fall in place. आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसे कहाँ place करें. While A awarded tokens to no one except P, तो इनमें से कोई एक पर्सन वर्टिकल कॉलम्स में ढूंढना है जिसका एक ही टिक हो. यहां 3, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 1. तो कैन आई से दिस पर्सन हैज टू बी ए. सो शी इज द वन हु एलोकेटेड टोकन्स टू नो वन एक्सेप्ट पी. तो ये जो पी पर्सन है प्रज्ञा, दिस पर्सन हैज टू बी दिस पर्सन पी. आई होप दिस इज क्लियर. आर रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स. तो PQRST यहां पे कहीं है. इनमें से हमें पता है कि आर को हाईएस्ट टोकन्स मिले हैं, तो हॉरिजॉन्टली टिक्स काउंट कर लेते हैं. पी को कितने मिले? 4. नेक्स्ट जो पर्सन है उसे भी 4 मिले. तो अगर 4 हाईएस्ट हुआ तो फिर आर यहां आ जाएगा. पर देख लेते हैं आगे. 3 टिक्स हैं, 2 टिक्स हैं, 3 टिक्स हैं. गारंटी है आर हैज टू बी हियर. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस एंड टी. एस की TS यहां के आ सकते हैं. अभी 2 लोग एलोकेट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूअर्स. हमने सेकेंड क्लू यूज करा है. R received the highest number of tokens that anyone received, but she did not receive one from E. तो R को E ने टोकन नहीं दिया, तो टोकन E को ये 2 लोगों ने नहीं दिया, जिनमें से एक A है, तो the other person has to be E. मतलब we have known the exact token number of E. E का टोकन नंबर 11 है और उसका अरेंजमेंट भी हमें पता है. थर्ड क्लू, लास्ट क्लू बचा है. B awarded a token to S. तो B ने टोकन करा है, टोकन दिया है S को, बट नॉट टू Q. नॉट टू Q में ये 3 स्पेसेस बची. Q को टोकन नहीं मिला है, या फिर ये 4th वन. पर 4th वन तो A एलोकेटेड है. मतलब वी नो कि इन 3 में से ही B होना है, और फर्दर इन 3 में से B होना है. मैं एक जगह तो F है, मतलब कहना है से या तो इस जगह भी है या इस जगह भी है, अभी हमें नहीं पता. While D awarded a token to Q but not to S, D awarded a token to Q. तो D इन दोनों में से ही कोई होगा. Q को टोकन अवॉर्ड किया इन दोनों लोगों ने, तो D awarded a token, D has to be here. तो बचे कौन लोग? 2. कौन कौन? B और C. So we are just left with this कि अगर B यहाँ एलोकेट करा तो C यहाँ आ जाएगा, C एलोकेट करा तो B यहाँ आ जाएगा. अब उसके बेसिस पे प्रीवियस क्लू को एक बार और देख लेते हैं. B awarded a token to S. अगर B फर्स्ट केस में है तो B ने S को टोकन अवॉर्ड करा है, तो ये पर्सन को S होना पड़ेगा. तो फर्स्ट केस में दिस पर्सन इज S and then this will be T and then this, if this is T then this is S. You've solved the entire set. Questions अब बहुत easily हो जाएंगे. Let's move ahead to this part. I'll erase this and let's look at the questions. So ये structure है और इस structure के basis पे now you can answer. So एक बार quickly map कर लें कि हमारे corresponding tick and cross. In fact tick and cross we can apply again very quickly because we know कि टिक एंड क्रॉस सिर्फ फैक्टर्स के थ्रू आए हैं. सो 390 के फैक्टर्स में क्या क्या थे? सो वी सेड 2 था, 3 था, 5 था और 7 11 नहीं थे, 13 था. सो क्रॉस कर दिए. 210 के लिए 3 था, 2 5 था, 7 था, ये दोनों जगह क्रॉस था. आई होप ये क्लियर है. 165 में यू हैड 5 3 एंड 11, बाकी जगह क्रॉस था. एंड फर्दर 77 इज 7 एंड 11, बाकी जगह क्रॉस था.
एंड फाइनली 66 में यू हैड 2, यू हैड 3, और क्या 2 3 11, बाकी जगह क्रॉस था. सो नाउ वी कैन आंसर क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली. हाउ मेनी टोकन्स डिड क्यू रिसीव? क्यू ने कितने टोकन्स रिसीव करे? तो दो जगह टिक है. करेक्ट आंसर विल बी 2. Who among the following definitely received a token from B but not from D? B से तो टोकन मिला है, तो B इन दोनों जगह में से कहीं है, पर D से नहीं मिला है. D से नहीं मिला है, ये तो तीन लोगों का गारंटी है, तो वो हो सकते हैं P, R और या तो T और S में से. और हमें बोला है B से तो मिला है, B से मिला है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ टिक क्रॉस पोजिशन, B से मिला है, D से नहीं मिला है, सो दीज टू टिक क्रॉस की पोजिशन बन सकती है, या फिर इन दोनों की बन सकती है, या फिर इन दोनों की बन सकती है. वो डिपेंड करेगा TSST का, बट T से तो डेफिनेटली मिला है, तो वी कैन डेफिनेटली से चॉइस सी इज द आंसर. हाउ मेनी टोकन्स डिड C रिसीव? C अगर इस केस में ले तो 3 टोकन्स है, इस केस में ले तो भी 3 टोकन्स है, तो ऑल्दो दो केसेस बन रहे हैं, बट बोथ द केसेस पॉइंट टू 3 टोकन्स. हाउ मेनी टोकन्स डिड S रिसीव? S के लिए यहां से 3 टोकन्स, यहां से भी 3 टोकन्स, दो केसेस बन रहे हैं, बट दोनों में ही 3 है. Which of the following could be the amounts of funding that T received? T को 165 या 66 दोनों मिल सकती थी. A, B, both A and B. Probably a very very easy set if you're able to structure your data well, and that is what I'll want you to understand कि जब हम इस तरह के सेट्स कर रहे हैं, तो the core message is if you're able to structure this well कि आपने फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करके अगर बाद में लोगों को एलोकेट करा, तो you will be in good place because there is an inherent property of numbers that we can utilize to decide tick and cross. पूरा मैट्रिक्स पहले ही बन जाता है, बस लोगों को एलोकेट करना बच जाता है. सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट टेक अवे और लर्निंग फ्रॉम दिस सेट. I hope you have learned a lot and you're going to get a fabulous DLR percentile. That is a genuine wish that I have, that all those who are watching sincerely attempting these sets on your own, looking at the alternate ways to solve this set. I'm pretty sure that you're going to do seriously good job at getting a good percentile in the DLR section of CAT. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.